Good evening to everyone. Today, Purushottam, hospitality and tourism professional are again live today. मैं काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो आज आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज जो मॉड्यूल है वो स्क्रीन के सामने आपके पास है, इंट्रोडक्शंस टू रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट मैनेजर। वोकेशनल एजुकेशन में भी इस सब्जेक्ट्स को, रेस्टोरेंट मैनेजर को भी, आप जब हम बीवॉक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की बात करते हैं तो ये सबसे पहले मॉड्यूल जो है वो जब फाइनल ईयर में जो करंट सिलेबस पे जब हम आते हैं तो आपका जो फाइनल जो ईयर का जो है रेस्टोरेंट में, वहाँ फर्स्ट मॉड्यूल आता है आपका इंट्रोडक्शन टू रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स. Actually, these all vocational programs are the part of the vocational the जिस स्किल इंडिया मिशंस के अंडर ये सारे वोकेशनल प्रोग्राम जो है वो आपके आते हैं. द डेफिनेशंस ऑफ this is a Skill India mission launched in 2015, is a national initiative aimed at equipping youth and industry relevant skills and vocational training to improve employability and workforce readiness. So ये जो था वो 2015 में इसको शुरू किया गया था ताकि हम जो यंगर जनरेशन हैं, यूथ है, उनको हम लोग ट्रेनिंग दे के उनको इंडस्ट्री में एक्सपोजर्स दे के पढ़ाई के साथ साथ ताकि हम उनको एम्प्लॉय कर सकें. इसका जो पहला जो है रीजन, लॉन्च टू enhance the employability of youth. The Skill India mission was launched to equip young people with industry relevant vocational skills so that they can get better jobs to start their own businesses. It's focused on practical hands-on training in sector like hospitality, tourism, retail, healthcare, and more. By providing organized certifications and improving skills level, the mission help youth become job ready, confident, and employable in growing Indian and ग्लोबल वर्कफोर्स. तो जब हम वोकेशनल की बात करते हैं तो जो सरकार जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं 2000 आई थिंक 6 से जो है ये वोकेशनल एजुकेशन जो है वो शुरू होने जा रही है. जब हम करंट में बात करते हैं तो वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स में भी 9th क्लास से जो अभी बहुत सारे स्कूल्स में जो है एक्टिव है. और इन कॉलेजेस जो हिमाचल प्रदेश के 20 कॉलेजेस हैं वहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन जो स्पेशली जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म एंड रिटेल सेक्टर में जो अभी पढ़ाई जा रही है. दूसरा है फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस. क्या है कि व्हेन द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द कॉलेजेस, दो हर सेमेस्टर के बाद द सर्टिफिकेट्स जो है वो जॉब रोल के हिसाब से प्रोवाइड किए जाते हैं. So if we are talking about what written here is, Skill India missions places strong emphasis on practical industry aligned vocational training that prepares youth for real workforce demands through standardized national certifications. The mission ensures that trainees gain recognized and credible skills that meet industry expectation and global benchmarks. This focus helps create a skilled workforce capable of performing confidently in diverse sectors such as hospitality, tourism, retail, and healthcare sectors and many more. So third of जो हमारा सब्जेक्ट आता है hospitality and tourism as a key priority sector. The Skill India mission recognize hospitality and tourism as one of the fastest growing sectors with high employment potential because the industry required large number of skilled professionals in the area like food service, housekeeping, front office, travel operations, एक्सेट्रा. तो क्या है कि अभी भी हम लोग जब हम वोकेशनल एजुकेशन की कॉलेजेस में जब हम जो एम्प्लॉयमेंट का जो है परसेंटेज है वो देखते हैं मोर देन 80% है. तो जॉब भी इसमें जो है प्रायोरिटी जो है वो सेक्टर ये बन चुका है. सो चौथा पॉइंट हमारा आता है इम्प्लीमेंट बाय एनएसडीसी सेक्टर स्किल काउंसिल्स. द स्किल इंडिया मिशन इज एग्जीक्यूटेड थ्रू अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस एंड वेरियस सेक्टर लाइक sector skill councils which work together to design industry relevant training programs, develop national occupational standards, certify trainee and ensure quality across all skill development initiatives. These bodies connect training institutions with industry needs, ensuring that youth receive modern, standardized and job focused training skill. क्योंकि ये जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो बेसिकली मार्केट में, इंडस्ट्री में जो चेक करती है, रिसर्चर से चेक करती है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है. और ये जो कोऑपरेशन जो प्रोग्राम्स वोकेशनल चल रहे हैं इसमें एनएसडीसी और एसएस सेक्टर स्किल काउंसिल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है.
When we talk about the objectives and benefit of Skill India missions, ये जो है वो जैसे हमने बात करी है सेक्टर स्किल काउंसिल, ब्रिज इंडस्ट्री स्किल गैप, ये लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इंडस्ट्री में, कैसे चल रही है, उन सब को देख के जो इंडस्ट्री वो काम करती है। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिजिंग स्किल्स गैप रेफर टू आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द मिसमैच बिटवीन द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री एंड द competencies possessed by graduates or current employee as the sector continues to evolve, driven by technological advancements, changing consumer expectations, sustainability imperative and global competitions. There is an increasing demand for workforce that is both technically proficient and adaptable. Skill gaps often emerge due to outdated curriculum, limited practical exposures, inefficient technological training, and weak linkage बिटवीन द अकेडमी एंड इंडस्ट्री। तो गैप को जो है सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो और एनएसडीसी मिलके गैप को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो आउटडेटेड है या नहीं है, अपडेटेड है या नहीं है, आउटडेटेड तो नहीं है, तो ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ये डिसीजंस करते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्कफोर्स, कि हम लोग जो ट्रेनिंग है, जो वोकेशनल का जो मेन मोटिव है कि किस तरह से जो है वो लेटेस्ट जो है वो ट्रेनिंग्स जो है स्किल्स बच्चों को दिए जाएं, ताकि जो है क्वालिटी जो भी बच्चे जब इंडस्ट्री में जाएं तो रेडी टू वर्क हों। Improving the quality of workforce, focus on enhancing employee technical skills, soft skill, industry readiness to meet modern hospitality and tourism standard. Through better training, practical exposures, and continuous skill development, employee become more competent, productive, and customer focused. This leads to high service standards, improved guest satisfactions, and stronger, more competitive. जैसे कि हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग एरर यहाँ पे हो गया है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द competency, so vocational education also increase the entrepreneurship. Basically this is a combinations of skills plus the entrepreneurship, that is called the vocational. So when we are talking about increase opportunities in hospitality, जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज इन हॉस्पिटैलिटी, जो स्किल्स इंडिया मिशन का मोटिव है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग। सो द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, इवेंट मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज, इंक्रीजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेक्टर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, फर्स्ट वी हैव इज अ स्किल डेवलपमेंट एजुकेशनल ट्रेनिंग्स, द सेकंड इज इंडस्ट्री एकेडमी, कोलैबोरेशन करते हैं बच्चों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मिले, एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट जो है वो मिले, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड इंसेंटिव्स जो सरकार देती है बच्चों को, जैसे मंथली भी उनको 1000 रुपये दिया जाता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिसमें प्रमोशंस ऑफ इमर्जिंग सेक्टर्स। हॉस्पिटैलिटी क्या मतलब क्या है? हॉस्पिटैलिटी का मतलब है, हॉस्पिटैलिटी रेफर टू फ्रेंडली जो सर्विस देना, जनरस हो, कर्टियस हो ट्रीटमेंट ऑफ द गेस्ट, विजिटर और स्ट्रेंजर्स. इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ वेलकम एनवायरनमेंट, ensuring that the needs of the guests are anticipated and met with the care and professionalism. In a broader sense, hospitality is about providing comfort, जो गेस्ट को देना, सेटिस्फैक्शन, मेमोरेबल एक्सपीरियंस टू पीपल अवे फ्रॉम देयर होम। वो हॉस्पिटैलिटी का मतलब है जब लोग हमारे यहाँ पे, हाँ, जैसे घर में आते हैं हम लोग, जैसे जो कंफर्ट देते हैं वैसा ही हम लोग जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो होटल में गेस्ट को देने की कोशिश करते हैं। When we are talking about the next is coming concept, क्या है? The concept of hospitality goes beyond just providing food and accommodation. It encompasses a holistic approach to serve that impulses. So next we are coming to the hospitality industry क्या है और इसमें क्या है, जो जैसे हम जो जिसका गेस्ट सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, गेस्ट सर्विस एक्सीलेंस होनी चाहिए, जो भी हम सर्विस है वही स्टैंडर्ड हम दिन सुबह अगर हम जिस स्टैंडर्ड से सर्विस दे रहे हैं इवनिंग तक सेम स्टैंडर्ड सर्विस का होना चाहिए। कल्चर सेंसिटिविटी इसमें होनी चाहिए, एक्सपीरियंस हमने गेस्ट को देना है, इससे रिलेशंस जो बढ़ते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट इज कमिंग द मीनिंग ऑफ सर्विस क्या होता है? सर्विस का मतलब हेल्पिंग और डूइंग वर्क फॉर अदर to fulfill their needs or requirement. In hospitality especially means providing assistance, care or facilities to the guest in a manner that
that ensure their comfort, satisfaction, positive experience. Service is intangible and focus on experience, quality of responsiveness rather than a physical product. Guest satisfaction क्या होता है? It refers to the level of contentment and fulfillment experienced by a guest when their expectations are met or exceeded during a service encounter. In hospitality, it reflects how well the service, facilities and interactions satisfy the needs, experience and desire of the guest. ठीक है? When we are coming the key sector कौन कौन से हैं? Accommodations हैं, जो रूम है, इसमें हो रिजॉर्ट्स, हॉस्टल, गेस्ट हाउसेस, होम स्टेज. फूड एंड बेवरेज है, इसमें रेस्टोरेंट आ जाते हैं, कैफे, बार्स, केटरिंग, रूम सर्विसेज में आ जाती हैं. ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन में एयरलाइंस, रेलवे, क्रूज लाइंस, कार रेंटल्स, टूर ऑपरेटर्स. रिक्रिएशन में थीम पार्क, वेलनेस सेंटर्स हो गए, ये सारे इसमें आ जाते हैं. ठीक है. सो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, लेबर इंटेंसिव है, इंटेंजिबल है, जिसको टच नहीं किया जाता. सर्विस को पेरिशेबल है, जो रूम आज नहीं बिके तो उसको हम जो रिकवरी नहीं कर सकते हैं. पीपल ड्रिवन है. जो करंट ट्रेंड्स हैं जो इंडस्ट्रीज के हम लोग बात करें, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत योगदान है. सस्टेनेबल इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ता है. पर्सनलाइज गेस्ट एक्सपीरियंस देना भी आज के ट्रेंड में. वेलनेस एंड हेल्थ टूरिज्म बहुत ट्रेंड में है आजकल. एक्सपीरियंस एडवेंचर टूरिज्म ट्रेंड में, शॉर्ट स्टे एंड लोकल. So rising disposable incomes, globalization and connectivity, urbanization and lifestyle changes, government initiative and policies जो ड्राइव कर रही हैं. सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन रिव्यूज हो गए, जो भी बहुत जो की रोल प्ले करते हैं इसमें. टूरिज्म एंड सब सेक्टर कौन से? अकोमोडेशन, होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. फूड एंड बेवरेज, आपके रेस्टोरेंट में कैफे, बार आ गए, है ना. ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन हमने ये भी डिस्कस कर लिया. रिक्रिएशन हमने डिस्कस कर लिया. अट्रैक्शन, थीम पार्क आते हैं. माइस हो गया आपका, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस, ये हमने डिस्कस कर लिया. रेस्टोरेंट क्या होता है जब हम इंट्रोडक्शंस पे आते हैं? A restaurant is a commercial establishment that prepares, serves and sells food, beverages to customer. It is a key component of the hospitality industry, offering dining experience that range from casual to fine dining. Restaurant focus on quality, service, hygiene and guest satisfaction, providing both nourishment and social or leisure experience. तो क्या है जो आप बोल्ड उसमें देख रहे होंगे? कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रिपेयर सर्व्स, जो फूड है तैयार किया जाता है, सर्व किया जाता है फॉर कमर्शियल पर्पस. और इसमें जो टारगेट होता है क्वालिटी अच्छी देने का, जो रेस्टोरेंट के टारगेट्स होते हैं, है ना. हाइजीन हो, गेस्ट खुश होके जाए ताकि वो बार बार हमारे होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में आए. सर्व्स रेडी टू ईट फूड एंड ड्रिंक जब आता है. क्विक सर्विस है, ऑपरेट्स फॉर प्रॉफिट. ये डेफिनेट है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं. ऑफर टेबल सर्विस, टेक अवे, सेल्फ सर्विस ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम बुफे भी कहते हैं. क्या केटर डिफरेंट कुजीन्स, थीम्स और स्टाइल जो है रेस्टोरेंट्स में होते हैं. कितनी तरह के रेस्टोरेंट? फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट होते हैं, कैजुअल डाइनिंग होते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं, कैफेज हो गए, बुफेज हो गए. और इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्टोरेंट इन द हॉस्पिटैलिटी इकोसिस्टम क्या है? इनहांस गेस्ट एक्सपीरियंस, रेवेन्यू जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, कल्चर एंड क्लिनरी शोकेस. कल्चर को अलग अलग कल्चर में अगर हम देखते हैं, ये नया पॉइंट है कि जब चंबा में, जैसे हिमाचल का मैं एग्जांपल देता हूँ, कांगड़ी धाम बहुत फेमस है. जब हम कुल्लू में जाते हैं तो कुल्लू का जो है वो खाने का कल्चर अलग से है. सो वी नीड टू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कल्चर्स. द क्लीननेस स्टाइल इज डिफरेंट. आप बर्तन देखेंगे डिफरेंट है. स्पोर्ट टूरिज्म ग्रोथ को करता है जो रेस्टोरेंट्स हैं. इंटीग्रेशन विद अदर सेक्टर्स, सब सेक्टर. अकोमोडेशन हो गए, फूड एंड बेवरेज सेक्टर, टूरिज्म एंड ट्रैवल, ये हमने बार बार फिर से आ गए. रेस्टोरेंट मैनेजर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? जो हेड होता है, ओवर डेली ऑपरेशंस को देखना, सर्विस क्वालिटी, कंप्लेन तो नहीं है कोई, खाना अच्छा है नहीं है, वो सारी चीजें देखना. गेस्ट खुश जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या स्कोर है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल कैसे हो रहा है. स्टाफ मैनेजमेंट ठीक हो रही है. सुपरविजन, ट्रेनिंग, रोस्टर, गेस्ट खुश नहीं है ना, ये स्टाफ भी खुश है कि नहीं है. दिस ऑल थिंग्स मैटर्स व्हेन वी आर सर्विंग इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. कंप्लायंस विद हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है फॉलो है, कंप्लायंस है या नहीं है, हमारे सारी जो हम गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. व्हेन वी आर कमिंग टू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कम्युनिकेशन. so, जो स्किल्स होने चाहिए वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए. इंटरपर्सनल आपस में जो बात करने का जो तरीका है,
हाँ, वो कैसा है, इफेक्टिव है या नहीं है। लीडरशिप स्किल्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए, कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन स्किल्स होने चाहिए, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रेवेन्यू क्या है, कितना हम कर रहे हैं, क्या अर्निंग हो रही है, क्या मार्जिन है, प्रॉफिट में जा रहा है नहीं जा रहा है, अंडर प्रेशर में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होनी चाहिए, हायरार्की आगे। जो इंडिपेंडेंट रेस्टोरेंट होते हैं उसमें जीएम हो सकता है, ओनर्स भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द एंटिटी और एस्टेब्लिशमेंट्स, मे बी in some restaurants there is a different hierarchy, but this is the basic which is on the slide. So restaurant managers, assistant managers, supervisors, steward और supporting staff होता है। जब हम फूड एंड बेवरेज में हायरार्की की बात करते हैं तो फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है, कहीं में डायरेक्टर भी होता है। तो ये डिपेंड करता है आपका इन्वेंट्री के ऊपर। रेस्टोरेंट मैनेजर, उसके नीचे आगे कैप्टन, सीनियर स्टीवर्ड्स, फिर स्टीवर्ड और ट्रेनी जो हम लोग भी कई बार कोर्सेज से भेजते हैं। किचन की हायरार्की सबसे बड़ा जो हाईएस्ट लेवल होता है, एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, शू शेफ होता है, शेफ डी पार्टी होता है, कॉमी 3 2 1 नीचे से आप करते हैं, और किचन असिस्टेंट्स होते हैं। तो स्कोप ऑफ द वर्क क्या है, थ्योरी की हम बात करें तो अंडरस्टैंड ऑपरेशंस के बारे में, हमें सर्विस स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, फूड एंड बेवरेज सर्विस के प्रिंसिपल्स क्या हैं, हाइजीन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नॉर्म क्या हैं, कस्टमर इंटरेक्शन स्किल्स कैसे होने चाहिए, बेसिक ऑफ जो नॉलेज है वो मेन्यू का वो होना चाहिए, बेसिकली 7 फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसी पे बेस सारा चलता है। डिस्कस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, स्कोप ऑफ वर्क, प्रैक्टिकल आउटकम्स, टेबल सेटअप कैसे किया जाता है, सर्विस टेक्निक्स क्या है, सर्विस सीक्वेंस क्या है ना, ऑर्डर टेकिंग सीक्वेंस क्या है, ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ, होटल्स में है, रेस्टोरेंट में है, कैफे में है, क्रूज में भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, रेस्टोरेंट केटरिंग में भी होती हैं, एयरलाइंस में अपॉर्चुनिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ फूड सर्विस। सो बहुत ब्रॉडर एरिया है जब हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं तो। सो अंत में हम आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ रेस्टोरेंट। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स हमने डिस्कस किया, कैजुअल डाइनिंग, फाइन डाइनिंग है बहुत लैविश, जहाँ बहुत स्टैंडर्ड्स सर्विसेज दी जाती है, मैक्सिमम 5 स्टार होटल में फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स फेमस होते हैं। क्विक सर्विस जैसे हो गया आपका, पिज्ज़ा वगैरह है, बुफे रेस्टोरेंट्स होते हैं, थीम रेस्टोरेंट होते हैं, क्लाउड किचन्स होते हैं, कैफेज होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप, आई नो दिस वीडियो वाज बिट लॉन्ग, बट आई होप you enjoyed this video. Thank you very much for, or please like, share, and subscribe my tourism and hospitality insights channel. Thank you.